ਹੈਲੋ एवरीवन ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੈਮ ਟੌਪਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸੀਂ 1 ਬਾਈ 1 ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋਲਕੇਨਸ ਹੈਲੋਰੇਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੈਨ ਅਲਕੋਹਲ ਫਿਨੋਲ ਈਥਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨਸ ਐਂਡ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵਾ, that chapter is called organic compounds containing nitrogen atom। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆਫ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, that is organic compound containing nitrogen atom। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਾਈਨਸ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਜ਼ੋਨੀਅਮ ਸਾਲਟ। ठीक है, ये दो अपने को कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिन्हों कि ਅਸੀਂ 1 बाय 1 क्लीयर करांगे कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ठीक है, सो अगेन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਅਗੇਨ ਯੂ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਅਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਲਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਾਈਨਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। that reaction is called Mendeus reduction। सब तो पहला बेटा जी अपने को आ जाती है that is the Mendeus reduction। ठीक है, Mendeus reduction ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, we will use alkyl nitriles। ਅਸੀਂ alkyl nitriles यूज करनी है। alkyl nitrides ਦੀ बेटा ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, रिडक्शन करनी है और रिडक्शन ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ यूज करनी है, सोडियम अमलगम with alcohol। ठीक है, these are the reagent which is used for the reduction of alkyl nitriles। ठीक है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ alkyl nitriles ਦੀ बेटा reduction ਕਰਾਂਗੇ then what will we get, simple we get amines CH2 NH2 simple and these amines are primary amines। ये अपने को primary amines आ जाता है। Let's take one example, this is a journal reaction। so अगर बेटा ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ example ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, it is a benzonitrile। ਅਸੀਂ benzonitrile ਲਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ reduction ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ again sodium amalgam, alcoholic sodium amalgam। ठीक है, ethanol the presence, so what will we get, we will get CH2 NH2, that's it, this is called benzyl amine। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ, benzyl amine ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ठीक है, so this is your first naming reaction of the amines, that is Mendeus reduction, in which we will do the reduction of alkyl nitriles। clear? Now come to the second reaction, it is called Gabriel thalamide reaction। ਗੈਬਰੀਅਲ ਥੈਲਾਮਾਈਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਬਰੀਅਲ ਥੈਲਾਮਾਈਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੈਲਾਮਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਐਕਟੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੈਲਾਮਾਈਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਥੈਲਾਮਾਈਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ CONH, this is a thalamide। ठीक है, थैलामाइड ਦੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਨਾਲ, पोटेशियम एल्कली हाइड्रोक्साइड ना अल्कोहलिक KOH यूज करना है। whenever we use alcoholic KOH it will remove water
water is removed, water remove हो जाएगा and what will we get? वेरी सिंपल रिएक्शन इज इट, रिएक्शन बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा जिहा रिएक्टेंट सानू लगता है कि टफ लगता है रिएक्टेंट नु लर्न करना, बट रिएक्टेंट इज आल्सो वेरी इजी कि बेंजीन दे नाल अमाइड ग्रुप लगा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम एज अ थैलामाइड। ठीक है, सो ए बन गया बेटा अपने को पोटेशियम थैलामाइड। ठीक है, ये पोटेशियम थैलामाइड बन गया। नाउ हुन इहदे विच बेटा असीं की ऐड कर देना है, any alkyl halide will be added to this reaction। हुन इत्थे असीं alkyl halide ऐड करना बेटा, से कंसीडर असीं C2H5 इथाइल आयोडाइड ऐड कर दिंदे आ। जिवें असीं इथाइल आयोडाइड ऐड करांगे, पोटेशियम आयोडाइड इज रिमूव्ड, Ki पोटेशियम आयोडाइड रिमूव हो जाएगा और सानू की मिल जाएगा बच्चे, वी विल गेट CON और इतने की लग गया बेटा अपने को C2H5। ठीक है, एट द प्लेस ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम की जगह ते C2 इथाइल ग्रुप जिहड़ा वा उन्हें कर ली उदी जगह ले ली। ठीक है, ये चीज बन गई। नाउ फर्दर व्हाट विल वी डू, हुण असीं की करना है बेटा इहदे विच, इहदे विच असीं वाटर ऐड करने दी हाइड्रोलिसिस कर देनी है, ईदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस और बेसिक हाइड्रोलिसिस। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हो ਜਾਂ फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ बेसिक हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। ठीक है, जिवें ਤੁਸੀਂ हाइड्रोलिसिस करोगे तो आफ्टर द हाइड्रोलिसिस दिस बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा और साडे को फाइनल की बन जाएगा COOH, ये एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल गया और नाल की बन गया बेटा अपने को C2H5NH2। ठीक है, इतने की लग गया बेटा अपने को NH2, इतना हाइड्रोजन्स जाके लग गया और इतने अपने को COOH, दिस इज अ थैलिक एसिड, ये तो थैलिक एसिड बन गया। एंड ये वाला थैलिक एसिड है, इनू असीं अगेन यूज कर देंगे थैलामाइड बना के ते दोबारा असीं इनू रीयूज कर सकते हैं बार बार। ठीक है सी, सो दिस इज द गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। सो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन च देख लिए कि स्टेप हो रहे हैं, वेरी इजी स्टेप्स। सब तो पहला असीं थैलामाइड यूज किया, उन्होंने असीं अल्कोहलिक KOH नाल ट्रीट किया। अल्कोहलिक KOH ने सिंपल किया बेटा, वाटर इज रिमूव्ड, वाटर रिमूव हो जाएगा तो साडे को की बन जाएगा पोटेशियम थैलामाइड। Then this potassium thalamide is further treated with alkyl halides and we will get this byproduct, and then this is further hydrolysis, either acidic hydrolysis और बेसिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करेंगे थैलिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट एंड लास्ट व्हाट विल वी गेट, दैट इज अ प्राइमरी अमाइंस। ठीक है जी, ये ਤੁਹਾਡਾ प्राइमरी अमाइंस बन गया। सो दिस इज द सेकंड रिएक्शन डन। नाउ मूव टू द थर्ड रिएक्शन। उसी थर्ड बेटा थर्ड रिएक्शन आ जाती है अपने को हॉफमैन बोरामाइड रिएक्शन। हॉफमैन बोरामाइड रिएक्शन अगेन नेमिंग रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है बेटा। ये सारी रिएक्शंस है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये वाली नेमिंग रिएक्शंस बड़ी बारी बोर्ड के पेपर्स विच सानू देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो हॉफमैन बोरामाइड रिएक्शन दे विच की हुंदा बेटा, इहदे विच असीं किहड़े रिएक्टेंट यूज करदे हां, असीं यूज करदे हां बच्चे एसिड अमाइड्स RCONH2, एसिड्स अमाइड यूज करना है और एसिड अमाइड्स दी बेटा असीं कितना रिएक्शन कर दिंदे हां ब्रोमीन दे नाल, एंड ब्रोमीन दे नाल प्लस नाल असीं की ऐड कर दिंदे हां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, सो बोरामाइड। ठीक है, बोरामाइड नाम तो क्लियर है कि बोरामाइड मींस के व्हाट विल वी विल यूज ब्रोमीन, असीं इच ब्रोमीन यूज करांगे। ठीक है, सो एसिड अमाइड्स नू असीं ब्रोमीन दे नाल ट्रीट करना है और जदों भी बच्चे ब्रोमीन आ जांदा एक गल याद रखो, ब्रोमीन ने की करना है, 1 कार्बन इज लॉस्ट, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੌਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਾਈਨਸ प्लस K2Cr3CO3 potassium carbonate plus KBr and plus water. These all are the byproducts which are released during the formation of primary amines. ठीक है, so let's take one example. अगर ਅਸੀਂ कोई भी example लेने बेटा, मान लो CH3CONH2 है,
we have a estamide, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟਮਾਈਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ plus potassium hydroxide and we will get CH3NH2 plus K2CO3 plus KBr and plus water is released. So this is your Hoffman boramide reaction. Single step reaction है बेटा अपने को ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਲਾਈਕ ਗੈਬਰੀਅਲ ਥੈਲਾਮਾਈਡ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਐਸਿਡਮਾਈਡਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਓ ਵਿਦ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਂਡ what we will get finally primary amines and by products ਸਾਨੂੰ by products ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ clear. So let's move to the fourth reaction. जल्दी जल्दी बेटा ਆਪਾਂ fourth reaction ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ नेक्स्ट रिएक्शन ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ that reaction is called the Schmitz reaction. ठीक है, Schmitz reaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇਹ ਅਸੀਂ एसिड्स यूज करनी ਆ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ एसिड्स यूज करने ਆ ਇਹਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ हाइड्राजोइक एसिड जेड़ा हाइड्राजोइक एसिड है बेटा अदरवाइज इट इज वेरी एक्सप्लोसिव इट इज वेरी डेंजरस टू यूज बट जदों भी इनू ਅਸੀਂ वाली रिएक्शन करनी है तेनू बहुत केयरफुली ਅਸੀਂ करना है वाली रिएक्शन नु सो हाइड्राजोइक रिएक्शन दी ਅਸੀਂ कार्बोक्सिलिक एसिड ਨਾਲ रिएक्ट करावांगे जिवें ਅਸੀਂ रिएक्ट करावांगे तो व्हाट विल वी गेट concentrated H2SO4 होएगा कि बेटा अपने को इट विल फॉर्म अमाइंस बन जाएंगे प्लस CO2 इज रिलीज्ड एंड प्लस नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड. ठीक है, सो क्या होएगा बेटा अपने को इथों CO2 रिलीज हो जाएगा नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और नाल की बन जाएगा बेटा अपने को RNH2. फॉर एग्जांपल से अगर बेटा सी बेंजोइक एसिड लेने आ से वी हैव अ बेंजोइक एसिड ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਆ ਹਾਈਡਰਾਜ਼ੋਇਕ ਐਸਿਡ ਨਾਲ in the presence of concentrated H2SO4 तो what will we get C6H5NH2 that is aniline बन जाएगा प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा और नाल की रिलीज हो जाएगी बेटा अपने को नाइट्रोजन गैस. ठीक है, सो ये सी बेटा अपने को श्मिट्ज रिएक्शन. क्लियर, ओके जी. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਾਈਲੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ. ठीक है, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੈਲੋਲਕੇਨਸ ਹੈਲੋਰੀਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਲਕੋਹਲ ਫਿਨੋਲ ਈਥਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਾਰਬੋ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਕੀਟੋਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਾਈਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਰਾਈਡਲ ਕਰਾਫਟ एसाइलेशंस. ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ एसाइलेशन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਾइल ग्रुप ऐड करना है. असाइल ग्रुप ऐड ਕਰਾਂਗੇ इट मींस कि ईदर वी विल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ठीक है, सो एसाइलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਨੇ ਆ एनिलीन ਦੀ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ. सो दिस इज योर एनिलीन. ਅਸੀਂ एनिलीन ਦੇ ਵਿੱਚ बेंजोइल क्लोराइड ऐड करना बेटा COCl. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਜ਼ੋਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਐਡਡ ਟੂ ਦ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਐਨਿਲੀਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਇੱਥੇ NHCO C6H5 एंड प्लस नाल की रिलीज हो जाएगा बेटा अपने को HCl. ठीक है, सो ये बेटा अपने को बन जाता है it is your N-phenyl benzaamide. ठीक है, सो ये बेटा अपने को फॉर्मेशन हो जाती है N-phenyl benzaamide. This is called acylation and उस तो अलावा बेटा इसका नाम है गवा this reaction is named as a Schotten-Bowman reaction. इन्हों से Schotten-Bowman reaction दा नाम भी दिन्ने हैं बेटा. ठीक है, सो अगर तुहानू स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन आती है तुसी इस स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन च हमेशा याद रखना है कि ड्यूरिंग एसाइलेशन यू शुड यूज बेंजोइल क्लोराइड. हमेशा ही बेंजोइल क्लोराइड यूज करना है. जदों भी तुसी बेंजोइल क्लोराइड यूज करोगे तो उन्होंने बेटा असीं बोल दिन्ने आ स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन. तो स्कॉटन-बॉमन रिएक्शन आ जाती है. ठीक है बच्चे, ओके जी, आगे चलिए फिर अपन. सो
ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਬਾਈਲ ਅਮਾਈਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ C ਫॉर ਕਾਰਬਾਈਲ ਅਮਾਈਨ ਐਂਡ C ਫॉर ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਮਾਈਨਸ RNH2 plus CHCl3 प्लस नाल बेटा ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲਕੋਹਲਿਕ KOH। ਅਲਕੋਹਲਿਕ KOH क्लोरोफॉर्म एंड प्राइमरी अमाइंस। सानू एक की मिल जाएगा बेटा इतने अपने को RN that is alkyl isocyanides plus KCl is released and water is released as a byproduct। ठीक है, सो इथों क्या हो जाएगा बेटा कार्बन इधर ऐड हो जाएगा। सो ये अपने को एल्काइल आइसोसायनाइड्स बन जाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड्स ते वाटर की हो जाता है रिलीज हो जाता है। ठीक है, सो इनू असी आइसोसायनाइड फॉर्मेशन भी कह दिंदे आ। और इस तो इलावा ना बेटा इसका एक नाम भी इसका एक होर नाम हैगा, दिस इज कॉल्ड आइसोसायनाइड टेस्ट। आइसोसायनाइड टेस्ट भी बोल देंगे बेटा आप इन्होंने। Why it is named as a isocyanide test? Because this reaction is used for the distinguish of primary amines from secondary and tertiary amines। बेटा जो secondary ते tertiary amines है ना, they do not give this reaction। वो सानू ये वाली रिएक्शन नहीं दे सकते। अगर वो सानू ये वाली रिएक्शन नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली बेटा सानू पता लग जाएगा कि इट दिस रिएक्शन विल बी यूज्ड। अगर रिएक्शन हो रही है देन इट इज अ प्राइमरी अमाइंस, अगर रिएक्शन नहीं हो रही तो इट मींस कि इधर इट विल बी सेकेंडरी or tertiary। So that's why it is named as a isocyanide test, or its another name is the carbyl amine reaction। What is the नेक्स्ट रिएक्शन जी है बेटा अपने को दैट इज अ रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। हुणे कोई नेमिंग रिएक्शन ते है नहीं है, फिर आप इनू क्यों करन लगे हैं? तो रीजन की है बेटा जिहड़ी नाइट्रस रिएक्शन जिहड़ी हैगी है ना कि जिहड़े अमाइन्स आए तो नाइट्रस एसिड नाल रिएक्शन करदे, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन दिस रिएक्शन इहदे च की हो रहा है बेटा अपने को जिहड़े प्राइमरी अमाइन्स है, सेकेंडरी अमाइन्स एंड टर्शियरी अमाइन्स है, जिहड़े तीनों दे तीनों अमाइन्स हैगे ना दे रिएक्ट डिफरेंटली विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड ना बेटा डिफरेंटली रिएक्ट कर दिया, और अगर ये डिफरेंटली रिएक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली फिर दिस रिएक्शन इज अगेन यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन्स। इस रिएक्शन में बेटा असी एज अ टेस्ट यूज कर दिया। सो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन विल बिकम इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आप वन बाय वन देखते हैं कि प्राइमरी दे नाल नाइट्रस एसिड किवें रिएक्ट करदे आ, सेकेंडरी नाल किवें रिएक्ट करदे आ, एंड देन मूव टू द टर्शियरी के किवें रिएक्ट करदे आ। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले बेटा ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ प्राइमरी अमाइन्स ਦੀ। ਜਦੋਂ प्राइमरी अमाइन्स ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सो दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन दी नाइट्रस एसिड ना रिएक्शन करते हैं, और बेटा इहदे वास्ते आपां टैंपरेचर 273 केल्विन तो 278 केल्विन तक आपां नॉर्मल इनू टैंपरेचर प्रोवाइड करना है। तो ROH plus nitrogen is released and water is released as a byproduct। क्या होगा बेटा अपने को इथों आ वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधरों OH is connected with R, so अपने को ROH that is अल्कोहल, अल्कोहल्स बन जाएंगे और प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी ते वाटर फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज द सेकेंडरी दे केस की होएगा बेटा अपने को R2NH, R2NH है। अगेन असी दी नाइट्रस एसिड नाल ही रिएक्शन करनी है, नाइट्रस एसिड नाल रिएक्शन करांगे तो इन दिस केस R2N N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और प्लस बच्चे वाटर इज रिलीज्ड, वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो इहदे च देखो एच की बनदा पिया सी अल्कोहल बनदा पिया वा, और एच की बन गया बेटा अपने को नाइट्रोसो प्रोडक्ट बन गए। ठीक है बेटा अपने को N नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमाइन। ठीक है, सो ए डाई एल्काइल
अमाइन बन जाएगा। और जो बेटा ये बनेगा ना तो ये की बन जाएगा अपने को येलो ऑयल की तरह ही बन जाएगा बेटा, येलो ऑयल टाइप अपने को लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई जेड़ा अपने को ए वाला मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵਾਟਰ ਲਾਈਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ को, और ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ को ऑयल लाइक सब्सटेंस, सो सेकेंडरी बन गया। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਬਰਮੈਨ नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। सो ये बेटा अपने को जो सेकेंडरी ना करेगा तो इसका नाम आ जाएगा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। क्लियर गल करते हैं कि टर्शरी आ वो किवें रिएक्ट करेगा बेटा अपने को, टर्शरी के केस च की बन जाएगा बेटा अपने को, देखो ट्राइएल्काइल अमाइन साइट डजंट हैव एनी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इहदे कोल कोई नहीं हैगा। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, नाइट्रस एसिड ना बेटा रिएक्ट करेगा तो इन दिस केस की बन जाएगा बेटा अपने को R3NH और नाल की बन जाएगा बेटा अपने को नाइट्रो। सो इत्थे अपने को की बन गया बेटा अपने को एक कॉम्प्लेक्स बन गया। सो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अपने को कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा अपने को इन केस ऑफ प्राइमरी we will have alcohol, in case of secondary we will have N-nitrosodialkylamines, and in third case what will we get, we will get a complex, सानू एक complex ion मिल जाएगा। So that's why this reaction is used for the distinguish between primary, secondary and tertiary amines, and in case of secondary amines the reaction is named as a Liberman nitroso test। क्लियर जी, एनी डाउट? चलो जी मूव करते हैं अगली रिएक्शन दे वाल। आएंगे बेटा अपने को हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज आल्सो फॉर द प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस वास्ते रिएक्शन होंदी है बेटा अपने को, प्राइमरी अमाइंस दी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿएक्शन कितना करते हैं बेटा अपने को कार्बन डाइसल्फाइड ਦੇ ਨਾਲ CS2 ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कार्बन डाइसल्फाइड ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। सो कार्बन डाइसल्फाइड दी बेटा ਅਸੀਂ रिएक्शन करनी है प्राइमरी अमाइंस ਦੇ ਨਾਲ। सो प्राइमरी अमाइंस ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ देखो नाइट्रोजन को लोन पेयर है, सो नाइट्रोजन की करेगा बेटा इधरों इधर और इधरों इधर मूव करेगा। ठीक है, सो इस तरीके ना रिएक्शन होएगी। सो वी विल गेट इन वी गेट RNHC double bond S and SH। so this is your diethioalkyl कार्बमिक एसिड। सो ये बेटा दा कोल बाय प्रोडक्ट एज अ इंटरमीडिएट बन जाता है। सो इंटरमीडिएट बन गया। सो दिस इज योर फॉर्मेशन ऑफ डाइथायोएल्काइल कार्बमिक एसिड। देन ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना है बेटा अपने को HgCl2 मर्क्यूरी बेटा अपने को Rn डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S प्लस नाल की निकल जाएगा बेटा अपने को HgS एंड प्लस नाल की निकल जाएगा HCl। ठीक है, HCl दो HCl रिमूव हो जाएंगे, मर्क्यूरस सल्फाइड रिमूव हो जाएगा और नाल सानू मिल जाएगा R alkyl thiocyanate। So this reaction is called Hoffman mustard oil reaction। Why it is named as a Hoffman mustard oil reaction? क्योंकि देखो बेटा फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना, फाइनल प्रोडक्ट दे विच जेडी अपने को फ्रेगनेंस आंदी है, स्मेल आंदी, इट इज लाइक अ मस्टर्ड ऑयल। सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज अ Hoffman mustard oil reaction। सो Hoffman mustard oil reaction विच अगेन ਅਸੀਂ प्राइमरी अमाइंस यूज कीते, प्राइमरी अमाइंस ਅਸੀਂ रिएक्शन कीती है कार्बन डाइसल्फाइड नाल, वार्म दिस रिएक्शन मिक्सचर एंड वी विल गेट अ diethioalkyl carbamic acid, and after then we will add a mercurous chloride and finally we will get a alkyl thiocyanate and plus byproducts are released। क्लियर बच्चे? सो ये है सी नेमिंग रिएक्शंस अमाइंस दियां। एक ਆਪਾਂ छोटे ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾइंस ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਾइंस ਦੇ ਨੇਮਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਾਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਪਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡਸ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੂੰ ਅਪੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੇਟਾ।